Hello girls, all are fine beta, all are keeping well, good. Take care of yourself children. Children, you are welcome to our civics class. In the previous session you heard about the politics after 1948. And you must be remembering why I quote 1948. You have already heard that in 1948, Sheikh Abdullah became the Chief Minister of Jammu and Kashmir. You were also told his relations with the central government and the shortcomings faced by him. After his death, his successor, Farooq Abdullah, became the Chief Minister of Jammu and Kashmir. But his dismissal by the governor changed the minds of the people because they were too disappointed. About this also you were told in the previous session. You were also explained about separatism and the consequences, what the people faced, what changes had taken place because of separatism. With this children, today we are going to start a new point number 10, Punjab. Point number 10, Punjab. Children, as our chapter's name is Regional Aspirations, in which our first topic was Jammu and Kashmir. Now today we are going to speak about another state. You will be told about the aspirations of the people living in Punjab. बच्चों, जैसा कि आपका पाठ का नाम क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं, जिसके संदर्भ में आपने अभी तक के सेशन में जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों की क्या आकांक्षाएं थी, क्या उनके एक्सपेक्टेशंस थे शासकों से, प्रतिनिधियों से, इसके बारे में आपने पढ़ा। आज हम अगले राज्य की बात करेंगे, पंजाब। पंजाब में किस प्रकार की परिस्थिति थी, क्यों थी, वहां रहने वाली जनता की क्या आकांक्षाएं थी। So children, the decade of 1980s witnessed major development in Punjab. 1980 के दशक में पंजाब में काफी चेंज हुआ, विकास हुआ, परिवर्तन देखा गया. And the social composition of Punjab was changed after the independence. After independence, and later on, Haryana and Himachal Pradesh were also carved out of it. And they were declared as two different states. आजादी के बाद पंजाब की व्यवस्था में काफी अंतर पड़ा, सोशल व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में अंतर पड़ा. पंजाब से ही दो नए राज्यों का जन्म हुआ, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, जिन्हें दो अलग अलग राज्यों के नाम से आज हम जानते हैं. The rest of the country was reorganized on linguistic approach in 1950s. About this also you have read before. इसके अलावा किस प्रकार राज्यों का पुनर्गठन हुआ, भाषा के आधार पर किस प्रकार का राज्यों का पुनर्गठन 1950 के दशक में हुआ, इसके बारे में आपने पीछे चैप्टर्स में पढ़ा है. बट व्हेन वी आर स्पीकिंग अबाउट पंजाब, पंजाब became a Punjabi speaking state in 1966. पंजाब पंजाबी भाषी बोलने वाला राज्य कब बना? 1967 में. And Akali Dal was formed in 1920s, which was a political wing of Sikh. And what did they demand? They demanded for the formation of Punjabi Suba, where Sikhs were living in majority. Akali Dal, आपने नाम सुना होगा. इसका गठन हुआ 1920 में, जो खास करके सिखों का एक संगठन था. और उनकी क्या मांग थी कि जहां सिख बहुसंख्यक जनता है, उसे पंजाबी सूबा के नाम से घोषित किया जाए. Of course, that also was a challenge for the government. So we'll see in the next point number 11, political context. Point number 11 is political context.
ऐसी स्थिति में जनता की जहां अलग अलग आकांक्षाएं थी, अब हम देखेंगे राजनीति के क्या दायरे थे, किस प्रकार राजनीति हुई। So children, after reorganization, Akali Dal came into power in 1967 and in 1977. And that also was a coalition government, अर्थात 1966 और 1978 में अकाली दल स्टेट असेंबली में पावर में आई और उसका गठबंधन किसके साथ था? केंद्र सरकार, जबकि उस समय कांग्रेस का शासन था। बट दे डिड नॉट हैव पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अकाली दल की जो सरकार थी असेंबली में, स्टेट में, उसमें स्टेबिलिटी नहीं थी, अर्थात प्रशासनिक जो भी प्रक्रियाएं थी, जो व्यवस्था थी, उससे जनता भी कहीं ना कहीं असंतुष्ट थी। So what was that result? The result was that they were dismissed. The government was dismissed by the central government. इस प्रकार राज्य सरकार को केंद्र सरकार के द्वारा बर्खास्त कर दिया गया। Point number 2 is that they were not able to gain the support of Hindus. अकाली दल को हिंदू जनता का समर्थन नहीं मिला। तीसरा है सिख कम्युनिटी वॉज डिवाइडेड इन कास्ट एंड क्लास लाइन। जो उनका अपना सिख समुदाय था वह भी जाति और वर्ण के नाम पर अलग अलग बटा हुआ था। एंड देन इट इज सेड दैट दे वर डिवाइडेड दो दे वर सिक्स बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, बट कांग्रेस वॉज गेटिंग द सपोर्ट ऑफ दलित, चाहे वो किसी भी जाति के हों। जो दलित थे, दलितों को पूर्ण रूप से दलितों का सहयोग किसे मिल रहा था? कांग्रेस को मिल रहा था। So in the same context, in 1970s, a section of Akali Dal, they demanded for political autonomy for Punjab. अर्थात 1970 के दशक में क्या हुआ कि जो अकाली दल था, राजनीतिक संगठन था, उन्होंने पंजाब के लिए स्वायत्तता की मांग की, अर्थात उन्हें पूर्ण रूप से शासन करने का अधिकार मिल जाए, इसकी मांग अकाली दल के द्वारा की गई। एंड हाउ वी केम टू नो? बिकॉज इट वॉज रिफ्लेक्टेड एट द कॉन्फ्रेंस विच वॉज हेल्ड एट आनंदपुर साहिब। आनंदपुर साहिब में जो सम्मेलन हुआ उसमें इस बात का स्पष्टीकरण किया गया। In 1973, that was held in 1973, and there it was also spoken about the relationship between the state and the center and the aspirations of the Sikh. और उस आनंदपुर साहिब सम्मेलन में जो राज्य और केंद्र सरकार के बीच के संबंध थे, कहीं ना कहीं तनाव थे, उसके बारे में भी चर्चा की गई और वहां रह रहे लोगों की क्या आकांक्षाएं हैं, इसके बारे में भी स्पष्टीकरण किया गया। The resolution plead for a separate Sikh nation, और इसमें रेजोल्यूशन क्या था कि सिखों के लिए एक अलग राज्य की घोषणा कर दी जानी चाहिए। बट द रेजोल्यूशन वॉज ओनली लिमिटेड अमंग द सिक्स। जो ये अपील की गई वो केवल सिखों तक सीमित थी, इसे अन्य जनता का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं मिला, जिससे वह पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाए। And then Akali Dal was, after the dismissal of in 1980, they launched a movement on the question of distribution of water between Punjab and neighboring states. अर्थात 1980 में अकाली दल ने पानी के बंटवारे के परिप्रेक्ष्य में अपनी मांग रखी कि पंजाब और उसके आसपास के राज्यों में किस तरह पानी का बंटवारा किया जाए, और इस परिप्रेक्ष्य में सरकार ने क्या कदम उठाए, इसके बारे में आप नेक्स्ट पॉइंट में सुनेंगे। स्टूडेंट्स, जस्ट यू हर्ड अबाउट द स्टेट पंजाब एंड देन यू वर टोल्ड अबाउट द पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, किस प्रकार की राजनीति पंजाब को लेकर थी, किस प्रकार जनता में असंतोष था। विद दिस वी स्टार्ट पॉइंट नंबर 12, साइकिल ऑफ वायलेंस। पॉइंट नंबर 12 इज साइकिल ऑफ वायलेंस। पॉइंट नंबर 12 है साइकिल ऑफ वायलेंस, हिंसा का चक्र। जैसा कि आपने सुना, एज यू हैव हर्ड, दैट द पीपल वर डिससैटिस्फाइड, दे वर डिसकंटेंटेड विद द सिचुएशन गोइंग ऑन इन पंजाब एंड दैट रिजल्टेड इनटू वायलेंस। उसका असर क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ कि पंजाब में हिंसा भड़क गई। And the leadership of the movement was passed from moderate Akalis to the extremist। अर्थात
जो अकाली दल था, जो नरमपंथी थे, उनके हाथ से जो भी आंदोलन की प्रक्रियाएं थी वह चरमपंथियों के हाथ में चली गई, एक्सट्रीमिस्ट के हाथ में, जैसा कि आपने इंडियन स्ट्रगल में भी पढ़ा है, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट. Same way here also it happened. And the militants, what did they do? They made their headquarters inside the holy shrine. You are very well known about holy shrine of the Sikhs. Where is it? Do you all know? Yes, beta, it is in Amritsar and it is known as the Golden Temple. So what did the militants do? They started doing all the, you can say, the affairs related to their movement inside the temple. Or you can say that they made the holy place, they changed the holy place into armed fortress. उन्होंने उस पवित्र स्थल को हथियार रखने वाला किले के रूप में बदल दिया. वहां उन्होंने हथियारों को रखना आरंभ किया. वहां से उनकी सारी राजनीतिक गतिविधियां संचालित होती थी. अर्थात वह गोल्डन टेम्पल क्या बन गया? हथियार बंद किला. And in June 1984, what did the government do? The government of India, through Operation Blue Star, it flushed out the militants, but something unexpected was done, that the historical temple was damaged. 1984 में भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार, जस्ट एट योर नॉलेज फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चिल्ड्रन, इट कम्स ऑपरेशन ब्लू स्टार. इसमें क्या किया गया? जो भी हथियार उस टेम्पल में थे, गोल्डन टेम्पल में, भारत सरकार ने वहां से सभी कुछ निकाल फेंका. लेकिन एक दुख की बात हुई कि स्वर्ण मंदिर को भी नुकसान हुआ, जो सिखों के लिए बड़ा ही कह सकते हैं उनकी भावनाओं को आघात पहुंचा. ऑफ कोर्स इट हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द सिख. सो दिस वाज वन इंसिडेंट had taken place. And the second incident was that you all must be knowing, you ask your parents about it. The assassination of Indira Gandhi was done on 31st October 1984 outside her residence by her own bodyguards who were Sikhs. And it is it seems to be, it was just felt that they had taken the revenge of Operation Blue Star. क्योंकि उस समय भारत सरकार में शासन किसका चल रहा था? कांग्रेस का. और उसी समय ऑपरेशन ब्लू स्टार की गतिविधि हुई. गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया, जिससे सिखों की जो उनके अपने भावनाएं थी अपने धर्म के प्रति, उनको आघात पहुंचा. और शायद ये बदला सिखों में था, और शायद वी कैन नॉट से, मस्ट माइट बी, कि इन्होंने इसी का बदला लेने के लिए जो उनके अपने अंगरक्षक थे इंदिरा गांधी के, उन्होंने उनको उनके ही निवास स्थान पर उनको समाप्त कर दिया, उनकी हत्या कर दी. While hearing to this, the whole country was shocked. And one thing more happened. Of course, that was the sentiment, that was the reaction. At once, it was an immediate reaction of the people. But of course, it was too disappointing when we feel that how the Sikhs face the harsh violence. ये दुख की बात है. लेकिन उस समय के अचानक होने वाले दुर्घटना के कारण लोगों में रोष था. इसीलिए सिखों के साथ उस समय बड़ा दुर्व्यवहार हुआ, उनकी हत्याएं कर दी गई, निर्मम हत्याएं हुई. कई तो जगह पर पुरुष, सिख जो पुरुष थे, उनके साथ बड़ा बुरा व्यवहार हुआ, निर्ममता से उनका वध कर दिया गया. If you speak to your parents, they will surely tell you the situation which had taken place in 1984. And later on, after 20 years, in 2005, Prime Minister Manmohan Singh, what did he do? He regret on the killing which had taken place and he apologized to the nation for anti-Sikh violence. इस बात का दुख आपको है, हमें भी है, कि सिखों के साथ बहुत ही निर्ममता का व्यवहार किया गया. इसीलिए मनमोहन सिंह की जब सरकार 2005 में उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस कुकृत्य के लिए माफी मांगी. कहा गया जो कुछ भी हुआ यह गलत था. Now we'll see to next point number 13, road to peace. Point number 13. पॉइंट नंबर 13, रोड टू पीस. आपने अभी तक सुना कि किस प्रकार हिंसा भड़की, किस प्रकार सिखों के साथ व्यवहार किया गया.
प्रशासन को लेकर, अव्यवस्था को लेकर सिख दुखी थे, पंजाब की जनता दुखी थी। तो शांति व्याप्त होना जरूरत थी इस बात की कि शांति और सुव्यवस्था लाई जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में आपका पॉइंट नंबर 13 है, रोड टू पीस, शांति की ओर। Rajiv Gandhi, when he became the Prime Minister after his mother's death in 1984, what did he do? He initiated dialogue with moderates of Akali leaders. उन्होंने जो नरमपंथी अकाली दल के जो नेता थे उनके साथ उन्होंने बातचीत की। And in July 1985, they reached with an agreement with हरिचंद सिंह लोगोवाल। राजीव गांधी की वार्ता किससे हुई? नरमपंथी अकाली दल के नेता हरिचंद सिंह लोगोवाल, जो अकाली दल के उस समय अध्यक्ष थे। एंड दैट एग्रीमेंट वॉज नोन एज पंजाब एकॉर्ड। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए पंजाब एकॉर्ड, पंजाब समझौता के परिप्रेक्ष्य में ये शॉर्ट आंसर आता है, लिख लीजिएगा। एंड अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट व्हाट वाज डिसाइडेड, इस एग्रीमेंट, इस समझौते के तहत क्या निश्चय किया गया, क्या क्या बातों पर डिस्कस हुआ। द फर्स्ट इज चंडीगढ़ वुड बी ट्रांसफर टू पंजाब, चंडीगढ़ का विलय पंजाब में कर दिया जाएगा। एंड अ सेपरेट कमीशन वुड बी अपॉइंटेड टू रिजॉल्व द बॉर्डर बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा, पंजाब और हरियाणा के बीच जो सीमा की समस्या है उसके लिए भी समिति गठित करके उसका भी हल निकाला जाएगा। एंड द थर्ड इज द ट्रिब्यूनल विल बी सेट अप टू डिसाइड द शेयरिंग ऑफ रावी बीज रिवर आर्मी पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। मीन्स ट्रिब्यूनल एक गठित किया जाएगा, अर्थात पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच रावी व्यास नदी के पानी के बंटवारे हेतु एक ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। क्लियर? शेयरिंग ऑफ रावी बीस रिवर अमंग पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, जो आपने तुरंत अभी इस पॉइंट में सुना है कि पानी के बंटवारे का भी एक उनकी समस्या थी सिखों की। तो इसके लिए भी राजीव गांधी ने इस समझौते के तहत इसको भी, इसका सुझाव निकालने के लिए, समाधान निकालने का भी हर संभव प्रयत्न किया। एंड द फोर्थ पॉइंट इज विथड्रॉल ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट इन पंजाब, जो पंजाब में विशेष सुरक्षा बल था, जो सैनिक कार्रवाई थी, जो सैनिक तैनात किए गए थे, उनको भी वहां से हटा दिया जाएगा। बट चिल्ड्रन, आफ्टर ऑल दिस एवरीथिंग वाज इन वेन। इन सभी समझौतों का कोई खास असर पंजाब में नहीं देखा गया। एंड देन प्रेसिडेंट रूल वाज इम्पोज्ड इन पंजाब, पंजाब में राष्ट्रपति शासन लग गया। एंड देन आफ्टर दैट इलेक्शन वाज डन इन पंजाब इन 1992। इसके बाद राष्ट्रपति शासन के बाद 1992 में पंजाब में इलेक्शन हुआ, जहां केवल 24% जनता ने मतदान दिया। वेरी सैड। It means the people living in Punjab, they were really very disappointed by the administration. That is why only 24% was done in 1992 in Punjab. And because people have suffered in different ways. आपने अभी 2-3 घटनाओं के बारे में सुना जिससे पंजाब में रहने वाली जनता अत्यंत दुखी थी। Now what they want? They wanted peace. So peace in Punjab prevailed only in 1990s के बाद से 1990 के दशक में कहा जाता है कि थोड़ी बहुत शांति वापस बहाल होने लगी। And how it was done? When people, because now people, they wanted peace and they expected economic development and social change. When the alliance of Akali Dal and BJP, they had scored a good result in the election of 1997. 1992 में 24% मतदान हुआ, लेकिन 1997 में जब अकाली दल और बीजेपी के चुनावी गठबंधन से चुनाव हुए तो उन्हें काफी सफलता मिली। और अब जनता क्या चाहती थी? जनता समाज में, अपने अपने राज्य में खुशहाली और शांति और सुव्यवस्था की उम्मीद करती थी। नाउ even the politics was totally changed. The people, they wanted to go back, they wanted to go along with the secular lines. अब वहां की जनता धर्मनिरपेक्षता की राह पर आगे बढ़ना चाहती थी। धर्म के नाम पर मार काट से वे अपने आप को बिल्कुल दूर रखना
चाहती थी, अर्थात पंजाब की जनता की जो मानसिकता थी वह भी पूर्ण रूप से बदल गई। अब वह शांति और सुव्यवस्था चाहती थी। फॉलोड बेटा? गॉड ब्लेस यू।